Hello students, welcome back. So today we are going to continue our chapter Electrostatics Part 2 from the subject Physics of Standard SYJC Science, and today we are going to cover the major topics which are related to electrical potential and its potential energy. So before moving to the electrostatics, what we have seen in the last video. Let's have a recap. So what we have seen in the last video, something which is related to Gauss, okay, and Gaussian surface, okay. So हमने exactly क्या देखा था? We have seen that Gauss has established a kind of a relationship between electric charge and electric field, okay. So the electric charge is always a property of a surface of a material, okay. कोई भी surface हो उसका हमेशा property होता है charge. Why? Because charge always get produced on the surface of a object, okay. So in order to have a electric field intensity due to all these spreaded, I can say the charges, तो obviously मुझे उनका क्या होना चाहिए, एक centrally और उनका सबका summation करके मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सो फॉर दैट गॉसियन सरफेस इज वन ऑफ द टेक्निक जहां पे वी कैन establish a relationship between them, right? And that has already been discovered by the Gauss, okay. So हमें अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट के एक r डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो विथ हेल्प ऑफ ओनली गॉसियन सरफेस मुझे या गॉस थ्योरम मुझे वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी में फाइंड कर सकता हूँ, राइट. सो बिफोर मूविंग टू दिस, just we have to understand what is electric flux. We have seen that electric flux is nothing but number of lines of forces, okay. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम हमेशा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बोलने के अलावा we just give it as a electric flux, and the electric field या electric field intensity is nothing but the number of lines of forces or the electric flux per unit area. मतलब एक एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है या कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. देयरफॉर दिस electric flux also be written as charge per permittivity, okay. जैसे मैंने बोला था permittivity is nothing but it's a property of medium to allow the number of lines of forces, okay. And for vacuum and air they will allow maximum number of lines of forces, okay. So permittivity is nothing but the permission to pass the electric lines of forces, okay. So the phi will be equal to q upon epsilon naught. Also phi is also equal to close integral of electric field and the area ds, and where phi is nothing but my electric flux, okay. Always remember. Now we have seen that if my object is a spherical or hollow sphere, right, or if my object is a cylindrical, right. So in both the cases we have found that there are certain specific formula through which I can easily find out the value of electric field or electric field intensity, okay. Because ये सारे शेप, ये सारे ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का एक डेफिनेट शेप है, and once I know the definite shape of a given object, so just by integrating that particular area I will be able to get the exact value of electric field, okay. And that's how we have found that for hollow sphere or for charge, I can say spherical object, I would be able to get a certain value of electric field, as well as for the cylindrical as well we got some specific value of electric field, okay. So ये दो applications हमने देखे थे. So now today we are going to see the third application, which is the electric field at point r distance from my given charge plane sheet, which is the infinite plane sheet, okay. So ये particular infinite plane sheet पे सारे charges क्या है, spreaded है, okay. And from the center of that particular sheet, okay, मैं क्या कर रहा हूँ, r distance पे एक point ले रहा हूँ which is point at p, and ये p point पे मुझे find out करना है कि electric field intensity कितना है, ओके. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से आ रहा है, ये जो चार्जेस स्प्रेडेड है इनफाइनाइट शीट पे उसके वजह से
ये पर्टिकुलर P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मुझे जानना है. ओके, सो फॉर दैट आई नीड टू डू सम mathematical expression. Yeah, I need to prove this to find a certain equation for this plane sheet. Okay, so what they have saying, what they are saying exactly, what is the statement? The electric field intensity due to charge infinite plate sheet. मतलब ये जो plane sheet है वो है infinite. Okay, so इसका area definitely हम find out नहीं कर सकते. So in that case always remember ये जो एरिया है इसको हम लेंगे कैपिटल ए. ओके, सो वेयर एज जो प्रीवियस वाले हमने एप्लीकेशंस देखे थे वहां पे आई हैड डेफिनेट एरिया वेयर रेडियस वाज गिवन फॉर द स्फीयर एज वेल एज आर द डिस्टेंस, अगेन द रेडियस वाज गिवन फॉर अ सिलेंड्रिकल shape. Okay, so in that case it was very easy for me to find out their exact area, but here they are only saying that it's a charge infinite plane. So जब infinite आता है so there is no specific, so our everything is infinite. Okay, so their length and breadth is infinite, so it means that I need to take, instead of the definite value I can take simply area A. Okay, so यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I will take simple area A. So area A will be the entire, I can say, इसका plane sheet का area. Okay, also at point P I can say that the R is the distance. Okay, जहाँ पे ये centrally कट कर रहा है ये particular surface को. Now this is the cylindrical shape. So what I have did simple, मैंने एक यहाँ पे point लिया, but ये point के corresponding मैंने surrounding में एक Gaussian surface लिया. So actually this cylindrical is nothing but my cylinder is nothing but my Gaussian surface. Okay, because मुझे क्या find out करना है, ये particular point के या ये particular point पे electric field intensity कितना है, राइट. बट जैसे हमने प्रीवियस एप्लीकेशंस में देखा था कि अगर एक स्फीयर है तो उसके अराउंड मैंने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया, अगर एक सिलेंड्रिकल है तो उसके अगेंस्ट मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया था, राइट. बट यहाँ पे क्या है, प्लेन शीट है, सो आई कांट क्रिएट अ आइडेंटिकल गॉसियन सरफेस. सो दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया, ये पी पॉइंट के अक्रॉस मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया. So this is what I have assumed it. Okay, तो जैसे ही मैंने ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया तो मुझे पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंटेंसिटी है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ओनली डीएस से क्रॉस सेक्शन में या डीएस को ही खाली परपेंडिकुलर कट कर रहा है, वेयर एज दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर इज अनअफेक्टेड बाय माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज वो एरिया क्या है, मेरा पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड को. ओके, सो व्हेन दिस एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली उसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होगा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू मुझे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं मिल सकता. सो ओनली इफेक्टिव एरिया इज नथिंग बट नाउ दिस क्रॉस सेक्शन. ओके, बिकॉज ये क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग ही मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, कट हो रहा है. ओके, नाउ दिस इज व्हाट वी हैव सीन. नाउ लेट्स do the actual theorem. अभी theorem में क्या दिया है, consider uniform charge infinite plane sheet with a surface charge density sigma. देखो यहाँ पे again surface charge density आ गया. In case of first application which is sphere, again surface charge density was there, but in case of cylinder the surface charge density नहीं होने के बदले वो कौन सा था, linear charge density था, right? So अभी यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, again it's a surface charge density. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मेरे गिवन प्लेन शीट पे, बिकॉज वो 2D है, राइट, सो 2 डायमेंशनल में मेरे जो चार्जेस है वो स्प्रेड हुए हैं. अगर मेरे 2 डायमेंशनल में अगर चार्जेस स्प्रेड होते हैं तो ऑब्वियसली मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जाना पड़ता है. क्यों, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ही ये है कि यूनिफॉर्म जो मेरे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सो पर यूनिट उसका वैल्यू कितना है, ये मुझे मिलता है मेरे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे. ओके, now let P be the point at a distance r from the sheet. So हमने ये देखा था P एक point है, okay, from r distance from this particular sheet, and E be the electric field at point P. So जो मुझे find out करना है वो मैंने at point P ले लिया. Then to find the electric field due to charge infinite plane sheet at P, consider a Gaussian surface around P in the form of cylinder. जैसे मैंने आपको बोला
कि यहाँ पे उन्होंने ये जो सिलेंडर लिया हुआ है वो एक्चुअली मेरा गॉसियन सरफेस है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड जिसका लेंथ है 2r। मतलब यहाँ से लेकर ये पॉइंट से लेकर ये P डैश पॉइंट तक मैंने क्या लिया, उसका जो लेंथ है वो लिया मैंने 2r। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी इंटेंसिटी है और यहाँ पे भी इंटेंसिटी, ये ऐसे कैसे? देखो, जब भी मैं बोलता हूँ कि इट्स अ प्लेन शीट, इसका मतलब क्या कि उसके वो साइड भी क्या हो सकता है, देयर इज अ हाई चांस कि मेरे चार्जेस स्प्रेड हो, और ये साइड भी हो सकता है कि मेरे चार्जेस स्प्रेड हो। सो इसका मतलब क्या, व्हेनेवर द इनफाइनाइट प्लेन शीट कम्स, सो उसके पीछे भी चार्जेस है डिस्ट्रीब्यूटेड और उसके ये साइड भी चार्जेस है डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? और दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या, सिंपली मेरा जो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये डायरेक्शन में भी आएगा एज वेल एज उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा। ओके, बिकॉज दोनों साइड पे क्या है, मेरे चार्ज प्रेजेंट है। ओके, सो देयरफॉर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गॉसियन सिलेंडर मैंने लिया उसका जो लेंथ लिया मैंने 2r, और ये पर्टिकुलर प्लेन शीट मैंने ऐसे रखा कि ये पर्टिकुलर 2r को वो इक्वल डिस्टेंस में कट कर सके, विच इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस विल बी r एंड द अनदर डिस्टेंस फ्रॉम P डैश पॉइंट विल बी r। सो अभी मेरा ये जो इनफाइनाइट प्लेट है वहां पे मुझे दो पॉइंट मिलते हैं, एक पॉइंट P, दूसरा पॉइंट P डैश। दोनों आइडेंटिकल ही है, बस दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। ओके, सो एट पॉइंट P the distance from the sheet is r. Similarly, at point P dash the distance from this parallel sheet is r. Okay, so यहाँ से भी r distance और यहाँ से भी r distance. Okay, now what next they are saying, the plane sheet passes through the middle of the length of the cylinder such that the ends of the cylinder are equidistant from the plane sheet। मतलब ये जो plane sheet है उसने ये क्या कर दिया, सिलेंडर को इक्वल डिस्टेंस पे कट कर दिया, so that the center से P dash का point R and center से P का point R। The flux passing through the curved surface is zero as the electric field is tangential to the surface। Okay, again मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, the flux passing through the curved surface is zero। मतलब क्या, ये जो सिलेंड्रिकल का कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो है। क्यों? बिकॉज ये सारे लाइंस क्या है, ऐसे पैरेलल आ रहे हैं। ओके, so once all the lines are parallel तो obviously क्या होगा, ये particular only this particular area get perpendicular cut by this electric lines of forces, whereas ये जो curved surface है वो क्या है, parallel to these lines of forces, hence there is no electric field produced at that point। okay, so effective area मेरा क्या है, खाली ds। now let's see next। so total flux through the closed surface is given by, मतलब क्या कि ये जो टोटल सरफेस जो मेरा एक्चुअल कट हो रहा है वो क्या है, ये एरिया एक डीएस हो रहा है और ये दूसरा एरिया डीएस हो रहा है। ओके, सो ये दोनों क्या है, मेरे एरिया डीएस कट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे ऐड करना होगा द एरिया फ्लक्स कट बाय दिस एरिया डीएस एंड फ्लक्स कट बाय दिस एरिया डीएस। एक है एट पॉइंट पी, दूसरा है एट पॉइंट पी डैश। तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्लस करके दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स वो दोनों क्रॉस सेक्शन से कितने पास हुए हैं। ओके, देयरफॉर फाई विल बी इक्वल टू ए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। बट पॉइंट क्या है, दोनों का अलग अलग है, एक पॉइंट पी पे है, दूसरा पॉइंट क्या है, पी डैश पे। अगेन मैंने जैसे आपको बोला था लास्ट टाइम भी हमने जैसे देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, मतलब मेकिंग अ 90 डिग्री विद द एरिया ds। इसके लिए देयर इज नो रिजोल्यूशन ऑफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर cos थीटा, मतलब थीटा अगर जीरो है तो cos जीरो विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर e cos थीटा विल टर्म इनटू e एंड eds, और eds यहाँ पे मैंने लगा दिया। नाउ जैसे मैंने आपको बोला था कि we don't know as of now the area of this plane sheet because this is infinite, so as of now we will take it as a normal capital A। therefore अगर मैंने इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब छोटे से एरिया का अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे कितना मिला, उसका टोटल एरिया विल बी इक्वल टू a। सो इसका भी EA मिला और इसका भी EA मिला। सो फाइनली जो टोटल फ्लक्स कट हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू 5 विल बी इक्वल टू 2 into EA। okay, now again I have to put the equation or I need to replace the value with the surface charge density।
Therefore, surface charge density can be given as the amount of charge present in the plane sheet, whereas plane sheet का area कितना है A. Therefore, sigma will be equal to Q divided by A. Therefore, Q will be equal to sigma into A. Simple. So now यहाँ से मुझे और एक equation पता है कि my flux is nothing but always equal to amount of charge present in given permittivity. Okay, therefore phi will be equal to Q upon epsilon naught. But यहाँ पे Q का वैल्यू क्या किया है मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है. सो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या करूंगा मैं सिंपली पुट करूंगा तो मुझे phi will be equal to sigma into A divided by epsilon मिलेगा. Okay, whereas my phi will be equal to Q upon epsilon naught. So ये लिख के रखना आप. Okay, because यहाँ पे दिया नहीं हुआ है. Okay, so you can simply write it down. Okay, so this will be Q upon epsilon naught. So just मैंने Q का वैल्यू क्या किया यहाँ पे पुट किया और मुझे क्या मिला दिस इक्वेशन आई गॉट इट. Therefore phi मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है पहले वाले इक्वेशन से which is 2EA. तो मैं 2EA यहाँ पे डालूंगा और जो मेरा फाइनल इक्वेशन था सिग्मा A डिवाइड बाय एप्सिलॉन मैं यहाँ पे डालूंगा. So in short this AA will get cancelled and what I will get E will be equal to sigma divided by 2 into epsilon naught. Okay. So from this equation, actually, I will get the intensity at point, I can say P having a distance R from the infinite plane sheet. Okay. So from this, I can easily get the intensity at point P, okay, having R distance from this infinite plane sheet. Okay. So you can see here. So this is what the final equation for my infinite plane sheet. Okay, understood? Okay, so simple है यहाँ पे a plane sheet जिसका मुझे area पता नहीं है exact, so it is very difficult. So there, but the plane sheet is charged from the both the side, hence electrical intensity will be at the both the side. Okay, so मैंने Gaussian surface लिया जो cylindrical shape में है. Okay, at point from point P to point P dash और उसका जो distance है वो है 2R. But मैंने ये plane sheet ऐसे insert की कि that will be at the center. Okay, so in that case what is happening, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ये P पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है एट डिस्टेंस R. ओके, सो सारे चार्जेस जो भी मेरे प्लेन शीट पे प्रेजेंट है उसके वजह से एट पॉइंट P कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये मुझे इवेंचुअली फाइंड आउट करना है. राइट, सो विथ हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन मैंने क्या किया, सिंपली जो फ्लक्स कट हो रहा है वो खाली एरिया ds पे ही कट हो रहा है. ओके, बिकॉज on that area ds only the electric lines of force are perpendicular. So therefore ये area ds और ये area ds because there are two parts. Okay, but यहाँ पे जो area होगा वो हमें definite नहीं मिलेगा, हमें assume करना होगा वो area total area of the infinite plane sheet has to be A. So that A I need to keep it over here. Then मुझे phi का value मिला 2 into E into A. Okay, similarly from surface charge density I can derive the value of phi. So यहाँ से मुझे phi का एक वैल्यू मिला, यहाँ से एक phi का वैल्यू मिला. अभी मैं दोनों को इक्वेट करूंगा and from equate I will get E will be equal to sigma divided by 2 epsilon and this is the actual output of my point of intensity, sorry, the value of intensity or electrical intensity due to charge infinite plane sheet. Okay, understood everyone? Just give me yes or no, because this understanding is very important. Okay, because ये तीनों I would say this application is going to be used in many places specifically for JEE. Okay, okay, done, super. Now what is next? Now अब तक हमने जो देखा that is nothing but the electric field के बारे में पढ़ा. Okay, so electric field अगर ये point पे है, ये point पे है, ये point पे है तो उसका value with respect to shape of object क्या होगा ये हमने पढ़ा. Right, but now we are going to see the electric potential and the potential energy. Okay, so energy का मतलब क्या है? Energy का मतलब ये होता है the capacity to do the work. We called it as a energy. Okay, इसका मतलब क्या, मैं पहले आपका जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका पहले क्लियर करता हूँ. ओके, देखो एनर्जी क्या होता है सिंपल, एंड वर्क क्या होता है. ओके, लेट्स से कि यू हैव अ जीरो एनर्जी इन योर बॉडी.
ओके, और आपको 10 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाना है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल ईट वन पार्लेजी बिस्किट, लेट्स अज्यूम। ओके, सो आपने क्या किया, एक पार्लेजी बिस्किट खा लिया, और वो पार्लेजी एक बिस्किट खाने के बाद आपको 10 स्टेप्स का आपको एनर्जी मिला, और आपने क्या किया, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने वो 10 स्टेप्स क्या कर दिया, आप चढ़ के ऊपर चले गए। then what happened exactly is nothing but the energy which you consumed, okay, it eventually lost when you started, you know, going up. Okay, जैसे से आप स्टेयर्स क्रॉस करना स्टार्ट कर दिए, जैसे आप 10th स्टेयर्स पे आप पहुंच गए, अगेन योर एनर्जी बिकेम जीरो। ओके, सो व्हाट यू डिड एग्जैक्टली, यू परफॉर्म अ वर्क। ओके, आपने वर्क क्या किया कि आपका अगेन एनर्जी जीरो हुआ, यू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, इसका मतलब क्या कि वर्क हमेशा अगेंस्ट सम फोर्स होना चाहिए। ओके, इसके लिए हमेशा जो वर्क का इक्वेशन या वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ओके, सो हमेशा क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नथिंग बट योर एग्जैक्ट एनर्जी which you get from objects. Okay, so what is energy? Capacity to do the work is called as the energy. Okay, and what is work done is nothing but force into displacement. Okay, simple है। अगर मेरे पास एक क्यूब है, okay, if that cube I want to push it, okay, from here अगर मैंने उसको force F लगाया, okay, so the distance, let's say x, if it is covering, then the force into this x will give me the value of my work done. Okay, और ये वर्क डन होने के लिए जो एनर्जी मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो वर्क डन ऑलवेज हैपेंस व्हेन द अपोजिशन फोर्स इज देयर। ओके, अगर अपोजिशन फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन कभी भी नहीं होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर इवन इफ यू अप्लाई द फोर्स बट द वर्क डन इज जीरो इज द स्पेस। मतलब जो भी लोग स्पेस में जाते हैं, राइट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वर्क इज इक्वल टू जीरो। ओके, व्हाई, बिकॉज द मोमेंट यू पुश एनी ऑब्जेक्ट, सो वो हमेशा पुश खाते ही रहेगा, इट विल नेवर स्टॉप बिकॉज ऑफ एनी रेजिस्टेंस और एनी अपोजिशन। सो इन दैट केस द एनर्जी विल बी इनफाइनाइट एंड वर्क विल नेवर हैपन। वर्क तभी होता है जब एनर्जी यूज होती है और खर्च हो जाती है। ओके, when the energy is getting used, at that time only the work it converted into a work. Okay, and work कैसे होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे भी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक I can say sense also, we have to understand the energy as well as the work done. Okay, so उन्होंने कौन से तरीके से दिया है मैं आपको बताता हूँ। So what they have saying, what they are saying, consider a positive charge q. Let's say ये मैंने एक positive charge q लिया at some distance, at some point in a space. Let's say मैंने space में एक point, मतलब anywhere मैंने एक point ले लिया o q. Okay, वो at point o पे है। For bringing any other positive charge close to it, the work is necessary. Okay, तो इसका मतलब क्या, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज दिस इज द एनी पॉजिटिव चार्ज आई एम ब्रिंगिंग टूवर्ड्स दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन आई एम ब्रिंगिंग टूवर्ड्स दिस, तो जब ये इनफाइनाइट पे है, सो इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स वेरी इजी टू पुश हिम। बट जैसे जैसे ये पास में आएगा वैसे पता चला कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देन देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, सो ये जो फोर्स है वो एक्चुअली ये क्या करेगा, ये दोनों को दूर रखने की कोशिश करेगा। But when you apply some kind of a force against that force, then your work will happen. Okay, so जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आप कोई भी ब्लॉक, अगर आप what I can say एक स्टैटिक पोजीशन से उसको धक्का मार के आगे लेके जाते हो, so there are two cases where you are doing the work against, एक तो ग्रेविटी, दूसरा नहीं, ग्रेविटी नहीं होगा, there is only work done which is against the frictional force. ओके, सो आपका जो एनर्जी है वो यूज्ड हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन जब भी आपको अपोजिशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ अदर फोर्स। ओके, सो हियर ऑल्सो अगर जस्ट मान लो कि अगर देर इज नो
I can say positive charge over here, and you are bringing any positive charge from infinite to the given place, तो क्या होगा, आपका जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो. क्यों? बिकॉज देर इज नो other positive charges which is already available, hence your work done will be zero. But जैसे ही एक positive charge मेरा यहाँ पे already है, but at that point of time if you are trying to bring any positive charge from infinite to the given location, let's say at point B, so at that time your work will not be equal to zero. So आपने कुछ ना कुछ तो work किया हुआ है. Okay, understood? So therefore the work done will come into the picture. Okay, and whenever there is a work done, obviously work को करने के लिए capacity कौन देता है? मेरा energy देता है. So ultimately energy will also come. Okay, so now यहाँ पे energy and work का क्या relation है मैं आपको बताता हूँ. In the sense energy and work done both are same. Okay, बस फर्क इतना ही है कि प्रोसेस मतलब या एक्शन होने के पहले और एक्शन होने के बाद. ओके, एक्शन होने के पहले जो अमाउंट रहता है उसको हम बोलेंगे एनर्जी, और एक्शन परफॉर्म होने के बाद जो एनर्जी रहता है उसको हम बोलेंगे वर्क. ओके, सो एनर्जी इज वर्क ओनली, बट आफ्टर आई कैन से used energy we called it as a work. Simple. Okay, now यहाँ पे क्या किया है, for bringing any other positive charge close to it, work is necessary because this particular charge will move against the repulsive force of this positive charge. This work is equal to the charge in the potential energy of their system. The work done against the electrostatic force. अभी यहाँ पे कौन सा electrostatic force लगा हुआ है? Repulsive वाला, because both are same. Okay, so the work done against the electrostatic force is equal to increase in the potential energy of the system. अभी इसका मतलब क्या? देखो, एक सिस्टम है मेरे पास मतलब एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ. लेट्स से मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट Q, और लेट्स से दिस इज माय पॉइंट O. सो ये मेरा पॉइंट O है. ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो मेरा प्लस Q0 है. ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्लस Q, so I'm bringing this particular object from infinite to this point. तो जब ये पास थोड़ा थोड़ा आते जाएगा, वैसे क्या करेगा, there will be force of repulsion between them. ओके, सो बट जितना मैं उसको पास लेके आने की कोशिश करूं उतना मुझे क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, और वो एनर्जी बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम अगेंस्ट दिस फोर्स काम करना स्टार्ट कर देगा. एंड व्हेनेवर दिस एनर्जी गॉट यूज्ड, मेरा वर्क डन पिक्चर में आ जाता है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर वर्क डन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर चार्ज को लेट्स से एक मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे. ओके, लेट्स से दिस इज नथिंग बट माय पॉइंट बी. ओके, अब मैंने ये इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक मैं लेके आया. ओके, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है. तो जब तक मैं इसको होल्ड करके रखूंगा तब तक क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं एक एनर्जी एक पूरे सिस्टम में स्टोर करके रखूंगा. ओके, या पूरे सिस्टम में मैं क्या करूंगा, एक वर्क डन स्टोर करके रखूंगा. बिकॉज जैसे ही मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर चार्ज को छोड़ दिया, वैसे ही क्या करेगा, ये चार्ज भाग जाएगा. क्यों? बिकॉज देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स. बट ये पर्टिकुलर चार्ज को होल्ड करने के लिए मुझे क्या लगेगा, एक एनर्जी लगेगा. ओके, या एक वर्क डन लगेगा इसको होल्ड करने के लिए, एंड दैट एक्चुअली वर्क डन और द एनर्जी, दिस एनर्जी. ओके, सो इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी विच इज जो हम एक्चुअल में यूज कर रहे हैं टू होल्ड दिस पर्टिकुलर Q0 फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट. ओके, अंडरस्टूड. एंड जब ये पूरे सिस्टम में ये दोनों चार्जेस जो बहुत रिपल्सिव है नेचर में, तभी भी दोनों के बीच का एक डिस्टेंस में मेंटेन करके रखा हूँ. क्यों? बिकॉज मैं उसको होल्ड करके रखा हूँ. ओके, सो जो एनर्जी मेरा सिस्टम में रहेगा उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट गिवन सिस्टम. ओके, और दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट पॉइंट बी, और मैं उसको बोलूंगा वर्क डन. सो देयरफॉर increase in the potential energy is nothing but the work done which is done. Okay, so मतलब potential energy जैसे जैसे मैं यहाँ पे store करना start करूंगा, which is nothing but equal to जैसे जैसे मेरा ये work done होते जा रहा है जब मैं इसको infinite से B point तक लेके आ रहा हूँ. Okay, so in short the energy of the universe is always constant.
ओके। बट जब मैं उसको लेके आ रहा हूँ फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, तो ये पर्टिकुलर एक एरिया, मतलब जो मैंने एक फ्रेम दिखाया, ये फ्रेम में क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी इवेंचुअली बढ़ रहा है। बिकॉज जैसे मैं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या चार्ज को छोड़ दूंगा, तो ये क्या करेगा, भागेगा। क्यों? बिकॉज देर इज अ रिपल्सिव फोर्स। बट इन ऑर्डर टू होल्ड इट, आई नीड टू अप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी टू इट। सो वो एनर्जी जो स्टोर हुआ है ये पर्टिकुलर सिस्टम में, उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके। और वो हमेशा इक्वल होगा जो मैंने वर्क डन किया है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? जस्ट गिव मी यस और नो। Understood? Because this is very important to understand the relationship between the energy and the work done. Okay? और work done हमेशा against force ही होता है. Okay? In space, that's why there is no work done. Okay? Good. Now, so now you have understood कि actual में work done कैसे हो रहा है. Okay? Because मैं एक infinite से at point P तक क्या कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव फोर्स लेके चार्ज लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ अगेंस्ट द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब मैं किसी के विरुद्ध या किसी के अगेंस्ट जब मैं कुछ भी एनर्जी लगाता हूँ, तो उसका कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन में। ओके। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली यही वर्क डन मुझे फाइंड आउट करना है, यही एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर द वर्क डन, it means the energy of the system or potential energy can be easily given by the F into dr. Okay? अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, लेट्स से A। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट A से पॉइंट B तक वो पर्टिकुलर चार्ज लेके आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा या कुछ वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव दिस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या, अगेंस्ट दिस पॉइंट Fe विच इज रिपल्सिव फोर्स। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ मैं पूरा डिस्टेंस फाइंड करने के अलावा व्हाट आई विल डू, फर्स्ट मैं एक छोटे से डिस्टेंस का I would say I will find out a work done for a very small distance. Okay, that small distance is nothing but my dr. तो ये छोटे से डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, पहले फाइंड आउट करूंगा कि ये छोटे से डिस्टेंस के लिए एक्चुअल में मेरा W का वैल्यू क्या है। एंड देन मुझे अगर ये W का वैल्यू मिल गया, तो फिर मैं सिंपली उसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम दिस पॉइंट A टिल पॉइंट B। ओके। जैसे मैंने पॉइंट A से पॉइंट B तक का मैंने क्या किया, अगर इंटीग्रेशन कर दिया, देन उसके बाद मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्क डन कितना हुआ पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके आने के लिए। ओके, एंड दैट वर्क डन इटसेल्फ इज नथिंग बट माय पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन माय गिवन सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे मुझे du तो मिल गया फॉर स्मॉल डिस्टेंस, जो पॉइंट A से बस ये पॉइंट तक लेके आने के लिए, whereas displacement will be dr. Therefore, force into displacement is my work done, and work done as of now storing in terms of potential energy. Therefore, potential energy is equal to F into dr. तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया, right? Now let's go ahead for the another set of equation. Yeah. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे, simply what they have given, let us consider electrostatic force field due to a source charge plus Q is placed at the origin. जैसे मैंने बोला कि O पे वो पर्टिकुलर चीज स्टोर्ड है। लेट अ स्मॉल चार्ज Q नॉट बी ब्रॉट फ्रॉम A टू पॉइंट B। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे वो पर्टिकुलर पॉइंट A से B तक लेके आना है। ओके, रिस्पेक्टिवली फॉर द डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम O। सो A का डिस्टेंस है R1 और B का डिस्टेंस है R2 अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। देखो ये जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मुझे वर्क डन करना है। वर्क डन अगेंस्ट, देखो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इन डिस्प्लेसिंग द Q नॉट थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए अगेंस्ट द फोर्स Fe appears as increase in the potential energy of the system. Okay, because जैसे जैसे मैं वर्क डन करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते जाएगा। ओके, और जैसे ही मैं ये पॉइंट तक लेके आऊंगा मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ओके, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर का जो आई कैन से होल्ड है वो निकाल दिया, तो अगेन ये जो पॉइंट Q है
वो पॉइंट ए पे भाग जाएगा। क्यों? बिकॉज इसने जो स्टोर किया हुआ एनर्जी वो अगेन रिस्टोर करने की कोशिश करके इसको भगा देगा। ओके, एंड दिस इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, नाउ therefore du will be equal to fe into dr, ये जस्ट मैंने पहले ही देखा था। तो इसका अगर मुझे वेक्टर फॉर्म हटा के इसको अगर नॉर्मल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, स्केलर फॉर्म में लिखना है, तो मुझे माइनस इंक्लूड करना जरूरी है। क्यों? बिकॉज जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, अगेंस्ट द फोर्स fe कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज फोर्स यहाँ पे है और मेरा जो वर्क डन का फोर्स है वो ये डायरेक्शन में है। देयरफॉर माइनस fe into dr is nothing but my energy, or I can say the potential energy. Okay, now let's go for the next. Yeah, so here they have given a simply more detail, I would say, the derivation of it. For the displacement of the charge from the initial point A to the final point B, the charge in the potential energy delta U and obtaining by integrating of du. Okay, so इसका मतलब कि अगर मुझे टोटल एनर्जी फाइंड करना है टू ब्रिंग द पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब जो छोटा एनर्जी मिला है उसका मुझे इंटीग्रेशन करके बड़े एनर्जी में वैल्यू फाइंड आउट करके लेके आना है। देयरफॉर du जस्ट हम लोगों ने पहले ही देखा था, विच इज नथिंग बट माइनस fe into dr। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो हमें पता है, the force of attraction or repulsion between 2 point electric charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is the electrostatic force of attraction per definition. So according to them, 1/4 pi epsilon 0, it's a constant, and q and q naught are my 2 point electric charges divided by distance कितना है वो दोनों में जस्ट हमने इसके पहले ही देखा। डिस्टेंस कितना था, द डिस्टेंस वाज फ्रॉम O to B is R2। देयरफॉर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, R2 नीचे लिखा है। ओके, सो Q डिवाइड बाय Q नॉट डिवाइड बाय, यहाँ पे R2 उन्होंने स्पेसिफिक नहीं किया है, जेनेरिक टर्म में लिखा हुआ है, which is nothing but R²। देयरफॉर फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 point इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम पॉइंट R1 टू R2। सो देयरफॉर यहाँ पे लिमिट जो मैंने लगाया वो लगाया R1 से R2 तक। देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा U विल बी इक्वल टू द लिमिट फ्रॉम R1 टू R2 du को मैं क्या पुट करूंगा, fe into dr, बट fe मैंने जस्ट फाइंड आउट किया, विच इज 1/4 pi epsilon नॉट into q डिवाइड बाय q नॉट, बट माइनस साइन यहाँ पे है, तो सेम मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा into dr। अभी dr का मैंने क्या लिया, एक पोजीशन वेक्टर लिया। ओके, सो dr कैन आल्सो बी राइट इन टर्म्स ऑफ दिस r which is unit vector into dr। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस r। okay, because rest of the I can say the terms are constant, okay, because those are not dynamic, only this r is a dynamic। so integration of 1/r² का इंटीग्रेशन ये होता है -1/r in bracket r2, the limit from r1 to r2। ओके, सो इंटीग्रेशन आई होप आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² कैसे होता है, राइट। तो सेम इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे यूज करना है। ओके, नाउ यहाँ पे -1 आया तो -1 माइनस विल गेट कैंसल्ड। ओके, और मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/r का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी उसको लिमिट लगाना है। ओके, सो फ्रॉम R1 टू R2, सो इन अगर मैंने उसको लिमिट लगा दिया तो मुझे क्या मिला, 1/4 pi epsilon नॉट q into q नॉट इज इन ब्रैकेट 1/r2 minus 1/r1। okay, so this is nothing but the charge in potential, sorry, the change in potential energy is equal to the work done WAB against the electrostatic force। okay, it's a change, the change in potential energy is equal to work done। जैसे मैंने आपको बोला change in energy is nothing but itself my work done। okay, but वो work done किसके बीच में है, from point A to B। okay, therefore from point A to B, which is WAB, is equal to my delta U, which is equal to 1/4 pi epsilon q into q naught in bracket 1/r² minus 1/r1। बट जस्ट देखो कि ये 1/r2 और r1 का वैल्यू क्या है। देखो ये r1 का वैल्यू जो है वो है पॉइंट A,
और मैंने ऐसे देखा है कि मेरा जो ए पॉइंट है वो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ओके, एंड जो मेरा पॉइंट बी है वो है फाइनाइट डिस्टेंस पे विच इज R2। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये जो O से B तक का पॉइंट है उसको मैं R ले लूंगा, और जो O से A तक का पॉइंट है, द A पॉइंट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो मैं उसको ले लूंगा इनफाइनाइट। सो R1 विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड R2 लेट्स से इक्वल टू R। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, सिंपली मैंने क्या फाइंड आउट किया, इट्स कन्वीनियंट टू चूज द इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। Okay, the electrostatic force is also zero at R equal to infinite. Okay, so in that case what I did, thus the potential energy, okay, so the potential energy U of the system of 2 point charges Q1 Q2 separated by R can be obtained from the above equation by using, जैसे मैंने आपको बोला A पॉइंट को मैं अज्यूम करूंगा कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, so that is R1 is equal to infinite and R2 will be equal to R। ओके, सो देयरफॉर जस्ट ये दोनों वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमेशा याद रखना 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0 एंड 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। ओके, सो देयरफॉर ये जो मेरा 1 अपॉन R1 है दैट बिकम्स 0, सो मुझे जो फाइनल इक्वेशन मिला वो मिला 1 अपॉन R। देयरफॉर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, ओके, सो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ओके, इट हैज टू बी R सफिक्स टू R सफिक्स 1, सिमिलरली यहाँ पे भी R सफिक्स टू R सफिक्स 1। ओके, बिकॉज जो हमने पहले देखा था वो सिंपल R था, सो इट वाज नॉट R1 एंड R2। ओके, सो जस्ट मेक श्योर 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R1। ओके, ये सफिक्स है, रेज टू नहीं है। तो सिमिलरली जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो मुझे क्या मिला, R2 विल बिकम R एंड R1 विल बिकम 0। Okay, so therefore the final equation which we got, this is the final equation of my energy। okay, so अगर आप देखोगे जो फोर्स है, फोर्स के इक्वेशन में क्या होता है, जस्ट यहाँ पे एक R स्क्वायर होता है। ओके, बट एनर्जी के इक्वेशन में वो क्या होता है, R स्क्वायर नहीं होता। ओके, therefore force is also equal to this energy into 1 upon R। okay, so force के कई सारे I can say अलग अलग तरीके हैं। okay, so this is nothing but ideally equal to this, so this is my final electrostatic energy which is 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 divided by r। okay, so इसका फॉर्मूला याद रखना, एनर्जी का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला में वह ऊपर दोनों q1 q2 होते हैं और नीचे क्या होता है, r होता है। okay, now let's go for the next which is again a similar to it। ओके, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है वो यूनिट है जूल। ओके, उसका और एक यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁹ जूल। ओके, which is also equal to 1 mega electron volt is also, sorry, milli electron volt and 1 kilo electron volt। okay, so you have to use this accordingly। now there is a concept of potential as well, right? अब तक मैंने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी देखा, बट अब मुझे क्या मालूम पड़ना है, पोटेंशियल कितना होता है। देखो पोटेंशियल अगेन इट्स अ सिमिलर वर्ड। देखो मैं आपको एक सिंपल मैनर में आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखो ये मेरा पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है बी। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस है मेरा पॉइंट आर। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे मेरा पॉइंट Q1 है, यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है, Q2। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, ये जो टोटल सिस्टम में ये दोनों की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है इसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए उसके जो इक्वेशन में हमेशा Q1 एंड Q2 दोनों का होना बहुत जरूरी है एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना एनर्जी कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, एज वेल एज जितने चार्जेस बड़े होंगे उतना एनर्जी ज्यादा होगा, राइट? सो व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज रिमेंबर कि उनके बीच का डिस्टेंस एंड बोथ द चार्जेस आर इक्वल इंपॉर्टेंस। बट जब भी हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ओके,
सो ऑलवेज रिमेंबर पोटेंशियल के लिए खाली एक ही चीज इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल और द चार्जेस एट पॉइंट गिवन अ पॉइंट. लेट्स से कि यहाँ पे मेरा चार्ज है लेट्स से Q, ओके, विच इज एट पॉइंट O. सो मेरे O पॉइंट पे मेरा चार्ज है Q. ओके, मुझे फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज पोटेंशियल कितना होगा. तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सॉरी यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, एंड ये चार्ज का वैल्यू पता करना है. द मोमेंट आई विल गेट टू नो कि एट पॉइंट P, लेट्स से मैंने इसको पॉइंट दिया P, सो एट पॉइंट P because of this charge Q, what is the potential? So this is the equation of potential. Okay, so मैंने क्या किया, सिंपली ये एनर्जी के इक्वेशन से जस्ट मैंने एक Q हटा दिया. ओके, बिकॉज एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दो चार्जेस के बीच का एनर्जी फाइंड आउट करना, बट पोटेंशियल में क्या होता है, ओनली वन चार्ज के वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है एट सर्टेन पॉइंट, वो फाइंड आउट करना. तो कभी भी उसमें दो चार्जेस आएंगे ही नहीं. पोटेंशियल इज ऑलवेज डिपेंड्स और फाइंड आउट ड्यू टू ओनली वन चार्ज. दो चार्ज के बीच का कभी पोटेंशियल मिलेगा ही नहीं. द पोटेंशियल इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. ओके, whereas energy has to be a relative property between a charge. ओके, एनर्जी हमेशा दो पॉइंट के बीच में ही, दो चार्जेस के बीच में ही फाइंड आउट कर सकते हैं. आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि मेरे पास एक ही चार्ज है बस उसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताओ. नो, इट्स नेवर पॉसिबल. ओके, नेवर एवर. बट व्हेन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि ये पर्टिकुलर चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, तो यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट. ओके, बिकॉज प्रॉपर्टी potential is only the property of charge, but energy is the property of system of charge. It cannot be a one property of charge. Okay, always remember. That's why देखो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1/4 पे एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R, मतलब इसमें खाली एक ही चार्ज है जिसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है एट पॉइंट R डिस्टेंस फ्रॉम इट. ओके, अंडरस्टूड? जस्ट गिव मी यस और नो. दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल. और एनर्जी बहुत अलग होता है. ओके, एनर्जी हमेशा सिस्टम के निकालते हैं जिसमें दो पॉइंट होना जरूरी है. ओके, एंड पोटेंशियल हमेशा एक ही पॉइंट का निकालते हैं. ओके, ओके, गुड. नाउ हियर आल्सो व्हाट दे आर गिवन कि द क्वांटिटी VR, उसको ऐसे लिखते हैं, V इन ब्रैकेट R विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q अपॉन R, मतलब ये सेम इक्वेशन, बस खाली एक Q नहीं होगा. ओके, नाउ it depends on the charge Q and the location of the point R distance of Q. देखो मैंने जैसे आपको बोला था कि ये पोटेंशियल हमेशा उसके चार्ज पे, खुद के चार्ज पे डिपेंड होगा कि मेरा पोटेंशियल ये पॉइंट तक कितना है. ओके, देन उसके बाद दिस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q at a distance R from it, and therefore the electrostatic potential energy is always equal to potential into charge. ओके, इसका मतलब क्या कि ये एक पोटेंशियल मुझे मिल गया, ये पोटेंशियल को अगर मैंने दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलता है, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिलती है. ओके, देयरफॉर पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू U अपॉन Q. ओके, दिस इज आल्सो अनदर इक्वेशन. सो आप कोई भी इक्वेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल सकते हो. ओके, नाउ the next, which is the derivation how to find the electric potential due to a point charge. ये भी बहुत सिंपल है. ओके, इसमें भी वैसे ही किया गया है कि एक पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी आपको दूसरा चार्ज नहीं दिखेगा. हियर ओनली वन पॉइंट यू विल सी. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस खाली एक ही चार्ज की वजह से होता है, बट वो कौन से डिस्टेंस पे हम मेजर कर रहे हैं वो मैटर करता है. ओके, सो इन दिस केस एज वेल वी आर गोइंग टू डू द सेम. सो इन्होंने क्या दिया है, लेट्स सी द फिगर शोज अ पॉइंट प्लस Q एट लोकेटेड एट पॉइंट A. सो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट लोकेट कर दिया. वी नीड टू डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट A एट अ डिस्टेंस R. सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एट दिस पॉइंट आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट Q0. ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक potential at point A is
the amount of work done per unit positive charge which is displaced from infinite to the given point A. So what they have given, अभी मुझे क्या find out करना है, the electric potential at point A find out करना है, is the amount of work done per unit positive charge which displays from infinite to point A. Therefore, M be the intermediate point on this path where OM is equal to X. Okay. So infinite से मुझे ये point तक क्या find out करना है, the amount of work done find out करना है, and ये particular distance travel करने से मुझे find out करने मिलेगा कि actually ये point A पे potential कितना आ रहा है. But before that, अभी मैं directly I cannot directly find the value of X. Okay, because यहाँ पे OM क्या है, M is let's say my infinite distance पे मेरा एक find point है. Okay, तो ये point से ये point तक let's say मैंने एक छोटा सा distance achieve किया या find out किया, okay, जिसको मैंने नाम दे दिया dx. So let M be the intermediate point on this particular path because ये infinite से ये point तक मुझे लेके आना है. तो ये particular path पे मैंने क्या किया, एक छोटा सा एक इंटरवल या उसका एक सेगमेंट लिया, वो सेगमेंट को नाम दे दिया मैंने NNM. ओके, एंड ये M पॉइंट ऐसा है कि जहां पे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कैपिटल एक्स, सॉरी स्मॉल एक्स. Therefore, the electrostatic force per unit positive charge at M of a magnitude is given by F will be equal to 1/4 pi epsilon into Q divided by x square. ओके, अब मैंने यहाँ पे खाली Q क्यों लिया, बिकॉज इट्स अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, यूनिट पॉजिटिव का मतलब ही होता है द Q इज इक्वल टू 1 कूलम. ओके, देयरफॉर यहाँ पे जो Q रहेगा वो खाली इसका रहेगा. ओके, अंडरस्टूड. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डूइंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट. ओके, सो इन दैट केस आई एम ब्रिंगिंग दैट पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बट मैं कौन सा पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, unit positive charge. Therefore, the force will be equal to Q into unit positive charge divided by x square. But unit positive charge is always 1. So therefore, Q into 1 divided by x square. तो ये मुझे मिला मेरे force का equation at this point. Now, अभी मुझे क्या करना है, simply for infinitesimal displacement dx from M to N, the amount of work done is given by dw will be equal to f into dx. Okay, so मैंने क्या किया, simple I did, मुझे find out करना है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना वर्क डन हुआ है, बिकॉज जैसे ही मैं पूरा वर्क डन फाइंड आउट करता हूँ उसको डिवाइडेड बाय क्यू करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा. तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे कितना वर्क डन मैंने किया हुआ. सो एज ऑफ नाउ फॉर अ स्मॉल distance dx मेरा वर्क डन हुआ dw equal to minus f into dx. Therefore, the total work done in displacing the unit positive charge from infinite to point A is given by w will be equal to in bracket infinite to r minus f into dx. Therefore, it's infinite r minus 1/4 pi epsilon naught into q into x square into dx. Okay. So it is nothing but simply what I am doing is nothing but कि मुझे total work done find out करना है, कहाँ से कहाँ तक, from infinite till point R. Okay, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया from infinite to point R minus f into dx dw का वैल्यू डाल दिया बिकॉज मुझे total work done find out करना है, and f का वैल्यू मैंने simply यहाँ पे डाल दिया. Okay, सो जब मैंने इसका f का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया तो माइनस क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट टू r में x रेज टू माइनस स्क्वायर डिवाइडेड इनटू dx आ गया. जैसे मैं इसका x रेज टू माइनस 2 इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट सम इक्वेशन समथिंग लाइक दिस. ओके, अभी मैं इसका लिमिट सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, देखो उन्होंने दिया हुआ है माइनस 1/x, सो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल. सो मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिला, r का वैल्यू पहले पुट करना पड़ेगा माइनस 1/infinite. सो देयरफॉर 1/r माइनस 1/infinite. सो जैसे मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया तो मुझे फाइनली आई विल गेट द इक्वेशन which is w will be equal to q upon 4 pi epsilon naught into r. Okay, so therefore the potential at A due to charge q
can also be given by V is equal to W will be equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R. So यहाँ पे चार्ज ओनली बिकॉज ऑफ 1 मुझे मिल रहा है, तो 110% ये मेरा क्या होगा, पोटेंशियल होगा. So this is how the potential I will get. So that's why उन्होंने बोला है कि जब भी मेरा R इनफाइनाइट होगा, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होगा, सो मेरा पोटेंशियल हमेशा 0 होगा. इसका मतलब कि if I want to find out the potential at point at infinite, if the distance between this point and this point is infinite, so at that point of time the potential is also equal to 0. Okay, so जितना जितना मैं पास आते जाऊंगा उतना उतना उसका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. Okay, so now what we have done, we have simply did, we have taken a point O. ये point O Q O पे मेरा एक चार्ज है Q. ओके, एंड मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट से एक पॉइंट लेके आना है कि ए तक मेरा इसका पोटेंशियल कितना होगा. ओके, बट मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ. तो इनफाइनाइट जब मैं लेके आऊंगा तो ऑब्वियसली उसका ऑलरेडी चार्ज क्या है, क्यू है. तो मुझे एग्जैक्टली इसकी वजह से कितना पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है एट पॉइंट ए मुझे मिल जाएगा. ओके, सो ये इनफाइनाइट का जो पाथ है फ्रॉम पॉइंट इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट ए, उसके बीच में एक मैं इंटरमीडिएट पाथ ले लूंगा. उसका जो वैल्यू है वो है dx. तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज से मुझे dw का वैल्यू मिलेगा, विच इज अमाउंट वर्क डन फॉर दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, विच इज माइनस एफ इंटू dx. तो अगर मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा व्हेन द पॉइंट इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन आर. ओके, सो वो केस में जैसे मैंने यहाँ पे f का वैल्यू पुट कर दिया तो मुझे इक्वेशन मिला. आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट द इक्वेशन विच इज इक्वल टू w इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. Therefore, the potential at point P, at point A, due to the charge Q, will be equal to V is equal to W equal to Q upon 4 pi epsilon naught. Okay, so therefore, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मेरा जो पॉइंट है जहाँ पे मैं पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ वो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, then 110% the potential difference will be 0 at that point because there is a point is very far. Okay, so जितना मैं पास आ जाऊंगा ऑब्वियसली जितना आर डिस्टेंस कम होगा उतना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, मतलब पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ेगा. दिस शोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट इनफिनिट. ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ माय पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ओके, सो V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R. ओके, देखो मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहता हूँ कि फोर्स का जो इक्वेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. ओके, जो वर्क डन का इक्वेशन है या जो एनर्जी का इक्वेशन है, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 ओके डिवाइड बाय ओनली 1 R. ओके, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डिवाइडेड बाय R. ओके, यू कैन सी हियर देयर आर 2 Q, यहाँ पे भी 2 Q, बट यहाँ पे 2 R, यहाँ पे एक ही R, और यहाँ पे एक Q, यहाँ पे एक R. So this is how they are related internal. Okay, thank you.